तू मेरी जिंदगी है, तू मेरी हर खुशी है। तू ही प्यार, तू ही चाहत, तू ही बंदगी है। तू मेरी जिंदगी है। मेरे लबों पे तेरे नगमे मिलेंगे, मेरी लबों पे तेरे नगमे मिलेंगे। आँखों में मेरी तेरे जज्बे मिलेंगे। तू ही मेरी पहली ख्वाहिश, तू ही आखिरी है। तू मेरी जिंदगी है, तू मेरी हर खुशी है। तू ही प्यार, तू ही चाहत, तू ही बंदगी है। तू मेरी जिंदगी है। So for the last story of this mini series, I have my junior with me. Hi, Waski. Hi, Vijay. Hi, Vaski. So Waski and I bonded together through a very happening misadventure in our life that took place in my fourth year and her third year. The misadventure in detail is probably going to be told in one of the episodes by my hostel mates. I don't know whether it's released or it's going to be released, but if anyone's interested to know that misadventure, they'll know it in a separate episode. But for now, we'll leave it and we'll call it just the very big misadventure of our life. And yeah, so that happened, and because of that, we got kicked out of our hostel. मेरे लिए तो सही था, मैं फोर्थ ईयर में थी, मेरी जॉब लग गई थी, तो मुझे वैसे भी क्लासेस अटेंड नहीं करनी पड़ती थी. बट बॉस के लिए इट वाज अ डिफिकल्ट टाइम, क्योंकि थर्ड ईयर था, थर्ड ईयर में सबसे ज्यादा मेहनत करनी होती है. एंड आई थिंक दे बोथ बॉन्डेड ऑन द फैक्ट कि हम दोनों आउटसाइड दिल्ली वाले थे और हम लोग एक मंथ के लिए सस्पेंडेड थे और हमने कोई टेम्पररी अकोमोडेशन ढूंढा हुआ था. कोई दूर का रिश्तेदार जो दिल्ली में हो, हम उसके वहां रह रहे थे और दूर दूर से कॉलेज तक ट्रैवल करके आ रहे थे 1-1 घंटा. और आई थिंक हम दोनों ने बहुत ज्यादा एफर्ट मारा था टीचर्स के पास हर दिन जाके कि प्लीज वापस हमें कोई कहीं भी जगह दे दो, बट दे दो कैंपस में जगह. And वही हुआ, ended up the outside AD people ended up getting the hostel first. But उसमें भी when we were shifted into a new hostel, तभी भी हमारी हरकतें सुधरी नहीं. And उसमें से एक एडवेंचर है जो काफी इंटरेस्टिंग है और वो वास्की हमें सुनाएगी आज. No, I'm not colorblind. I know the world is black and white. Trying to keep an open mind, I just can't sleep on this tonight. Oh, stop this train, I wanna get off and go home again. I can't take this speed, it's moving in. Oh no, I can't, but honestly, won't somebody stop this train? Yes. So I'll do a correction, Vijay. I will not call it a hostel. वो था
Yeah. That was professors' apartments converted into MTech hostel, converted into suspended people's living area. That's it. That I was that's swear. it. A very depressing place, हाँ, and Yeah. you know, detention center instead of basically. people, instead of your own year or your seniors living nearby you, we have teachers and their kids. Yeah. That's it. Yeah. That was our sight. So we were very scared. Truly, we were very scared that we should get something to stay Yeah. hostel के लिए. But then जब वो मिल गया, तब I don't think so कि हम में से किसी ने भी कभी ये सोचा था कि what we did was very wrong और हमें ऐसा क्यों Yeah. ये क्या है. We were like अब तो इनके अब एक बार कॉलेज ओवर हो जाने दो, फिर तो देखना हम क्या कर देंगे. But now we have to be safe. Now we have to be safe. At least we decided that. But Yeah. one day, one very fine evening, एकदम से, one of our friends, Yeah. उसको उसके एक friend का birthday था, and she has to go. So Yeah. like she was preparing all day, बहुत सारा craft का सामान ये वो, and me and Vijay were like कि हम कभी इतनी मेहनत नहीं कर सकते किसी के लिए. है ही नहीं हम में इतना talent. And we were appreciating her कि भाई Yeah. बहुत lucky है ये friend. हम तो बस दारू पीने चले जाते, that's it. Actually. She was like ऐसे birthday के 12 o'clock strike होते ही surprises ये वो. So उसने ये सब prepare कर लिया. But हमारा curfew timing होता था hostel का 8:30. Very stupid thing. बंदे Yeah. बाहर घूम सकते हैं, बंदियों को 8:30 रहना है because 8:31 पे पता नहीं क्या हो जाएगा उनको. So 8:30 पे they are staying घर वहाँ पे आप नहीं जा सकते. And 8:30 का मतलब है आपको थोड़ी देर पहले अपना रीजन समझाना पड़ेगा Yeah. कि आप वहां से जा क्यों रहे हो. Like थोड़ी देर why do you मतलब? have to go? Like आपके पास एक स्पीच होनी चाहिए, well prepared. You can't say I'm going out just to have fun or going out to do this. You should have a well prepared speech with people roped in, like your parents roped in कि भाई कॉल आ सकता है कभी भी. So इस सबके साथ हमारी वो बेचारी फ्रेंड इतनी मेहनत करके उसने she got late थोड़ा सा. Instead of 8 Yeah. she started convincing the caretaker at 8:15 p.m. Yeah. and उन्होंने कहा अभी कहाँ जा रहे हो, अभी इस टाइम पे कहाँ जाना है. She explained, उन्होंने अपनी अच्छी सी स्टोरी बिल्ड की. हम लोग बस साइड से देख रहे थे सब क्यों हो क्या रहा है as always. So हम लोग बस देख रहे हैं and then we saw कि वो कह रही हैं कि आप जाने दो ना 8:30 तक we can go, ऐसे थोड़ना है ये थोड़ना है. हाँ. एंड एकदम से वो बोलती हैं कॉन्वर्सेशन होते एकदम से बात हुई कि बेटा 8:30 हो गए हैं, तुम नहीं जा सकती अब. सो शी वाज लाइक ऑल फायर्ड अप. बट मैं 8:15 से यहाँ पे खड़ी हुई हूँ बाहर जाने के लिए. आप मुझे बाहर क्यों नहीं जाने दे रहे. एंड देन वहां पे हुआ आर्ग्यूमेंट स्टार्ट बिटवीन अ केयरटेकर एंड अ पर्सन who already got suspended from hostel. Now she's and now she was very upset, crying over there that I have to go. And we also got scared कि यार ये क्या सीन है, ये तो गलत है. अभी भी instead of being, we should have been like very quiet, कोई बात नहीं, it should be okay. इतना सब कुछ लाइफ में ड्रामा हो गया है, let's be quiet. नहीं, हमें लग रहा था चलते हैं अब हेल्प करते हैं इसकी. ऐसे कैसे ऐसे तो बहुत गलत है. ज्यादा हमें बुरा उस आर्ट एंड क्राफ्ट के लिए लग रहा था कि यार ये बहुत मेहनत से बना हुआ है. इट शुड ये ऐसे नहीं करके पहुंचना चाहिए उसके पास. So what we did, so there were people, MTech students staying over there, जिनकी बहुत ही बेसिक सी लाइफ थी. सिर्फ जाओ प्रोफेसर्स के असिस्टेंट्स वाला काम करो, बहुत बेकार, और बस अपने रूम में रहने लग जाओ. We never talked to them. We never talked to them. And then suddenly one fine day, उसी दिन we went to them. हमने ऐसे सोचा कि यार हम बहुत बार देखते हैं, like unlike other hostels, that was an apartment. So वहाँ का कोई ऐसे वो नहीं था कि ground floor, first floor, second floor. It was just a duplex kind of a thing. So जो balcony थी
वहां से ग्राउंड लेवल मतलब ऐसा लग रहा था कि इतना भी ऊंचा नहीं है। मतलब Reachable यहाँ है. से हाँ मतलब ये काफी इतना नहीं है। हम ऐसे डिस्कस, हमें पता था, मतलब पता नहीं हमारे माइंड में ये क्यों था, बस था समवेयर अराउंड समवेयर। तो देन व्हाट हैपेंड, हम उनके रूम में गए and our friend, she was literally crying and she was feeling Yeah. so sorry कि we were feeling so sorry for her कि यार बहुत मेहनत की है, कुछ तो करना पड़ेगा। हम उन एमटेक वालों के पास गए, पता नहीं आइडिया कैसे आया, मैं और ये हंस रहे थे। हमने सोचा कि यार इसको भेज के ही रहेंगे अब तो हम, पता नहीं क्यों हाँ. एकदम हम भेजेंगे ही, कैसे कर सकते हैं ये लोग ऐसे, एंड एकदम से वो वाला वो फायर वो आ गया था। एंड देन वी डिसाइडेड यार इसको क्या कहते हैं, फर्स्ट फ्लोर से टपवा देते हैं। हमने तेरे हाँ कि कर देते, और हम हंस रहे हैं, हमें पता नहीं था कि हम ये सीरियसली करने वाले हैं। वी वर जस्ट लाफिंग, और वो बस वहां पे थी एंड शी वाज वेरी अपसेट कि मैं क्या करूं। और हम सोचा यार ऐसा करते हैं, अपन इसको है ना बस किसी रोप वोप से बांध देते हैं, इसको नीचे उतार देते हैं। एंड देन वी वर हैविंग स्टूपिड आइडियाज, क्यों ना हम सारे कपड़ों को बांध के, हमने बहुत सारे आइडियाज Exactly. तो बहुत कूल होगा ना। और वहां से आवर फ्रेंड शी वाज लाइक बाय चांस बीच में से खुल गया वो कहीं से कपड़ा, मैं नीचे गिर जाऊंगी। अच्छा, मतलब जान की डर थी कभी भी। यस यस थोड़ा बहुत थोड़ी तो थी. हाँ, बट हमें नहीं थी। हमें तो मजे आ रहे थे ना करने में। क्योंकि गिरती तो वो। हाँ, तो हम गए एमटेक स्टूडेंट्स के पास, बिकॉज उनके रूम में वो बालकनी थी। वी वेंट देयर, हमने बोला कि हमें ऐसा करना है। आई डोंट नो कि उन्होंने हाँ क्यों बोला, बट अगर वैसे सोचूं ऐसे इंट्रोस्पेक्ट करने के लिए तो मुझे लगता है उनकी लाइफ का ये इससे ज्यादा फन और कभी करने को मिल सकता। जजमेंटल लेवल 100 राइट नाउ। वो सुनेंगे तो सोचेंगे हमने ऐसा क्या किया कि हमें इतना रोस्ट किया जा रहा है। नहीं वो तो सुनेंगे भी नहीं। तो आई डोंट इवन रिमेम्बर देयर नेम्स, हमने उनके साथ इतनी बड़ी चीज। विजय, डू यू इवन रिमेम्बर? I don't remember anybody's name there. शक्ल नहीं याद है मुझे कि कौन थे वो लोग। Okay, mean girls. No, but they actually, it was really surprising that they were convinced to help us out कि भाई मान गए। हमें लगा था, हम लोग भी स्पीच तैयार करके गए थे कि इनको मनाना पड़ेगा, वैसे भी हम लोग सस्पेंडेड लोग हैं, हमारी इमेज ही खराब है हॉस्टल में। बट वो मान गए काफी, बोले कि चलो ठीक है इनको भी एडवेंचर चाहिए, दे देते हैं। और फिर जब वो प्लान एकदम से फाइनलाइज ऐसे हुआ, तब हमें लगा सही तो कर रहे हैं ना। फिर कहीं से हमें एक ने ऐसे बोला यार सस्पेंड तो हो ही चुके हैं, अब क्या ही होगा। ऐसे वाले हाँ राइट। और देन वी वर लाइक कि हम तो प्लानर्स हैं, हम तो बिल्कुल ऐसे प्लान करेंगे कि कुछ हो ही नहीं सकता है। देयर शी वाज, विजय कॉलिंग अपने बैचमेट्स को कि आ जाओ गाड़ी लेकर तुम यहाँ पे। सो उन्हें बोला कि आओ यहाँ से पीछे से ऐसे गाड़ी आके पार्क कर लो, हम ध्यान दे रहे हैं कि उस लेन में कोई वॉचमैन तो नहीं है कि जो देख लेगा ऐसी हरकतें होते हैं। फिर हमने सोचा किससे करें, कैसे नीचे पहुंचाएं। एंड विजय लाइक वेट डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। विजय में बोलते सुन थोड़ा तू बांध ले अपने स्टमक से और मैं बांध लूंगी, हम दोनों इस तरफ रहेंगे और उस तरफ पे एक लावण्य होगी। तो नहीं होना चाहिए ऐसा कुछ। ले लिया नाम। कोई नहीं फ्रेंड हाँ ठीक है। सो व्हाट हैपेंड कि एकदम से हमने कहा कि ठीक है कपड़े सुखाने का रोप जो होता है वो लेंगे और उसे यूज करेंगे। एंड वो एमटेक वालों ने कहा ओके वील हेल्प यू थोड़ा ऐसे पुल करने के लिए। हाँ सो और फिर हमें रियलाइज हुआ कि यार किसी ने लावण्य को देख लिया तो वी आर गॉन केस हो जाएगा ये तो। तो उसने ऐसे हुड वुड पहन के उसे लड़का बना दिया। बहुत ही बेकार वो है, कहीं से भी नहीं लग रही थी वो लड़का, पर हमने उसे लड़का बनाया। वेरी स्टूपिड बट ठीक है। क्यों बनाया वैसे लड़का? सो दैट आफ्टर 8:30 वो अच्छा कि मतलब लगे कि हाँ सॉरी हाँ ठीक है cool and then she got scared in between. she said कि
भाई मैं नहीं कर पाऊंगी ये, मैं नीचे गिर गई तो ठीक है, हम पता है कह रहे हैं, हम गिरने ही नहीं देंगे। उसके बाद मैं कहा हम गिरने, हम लोग बिकॉज हमें लग रहा था यार ये तो बहुत कूल प्लान है, ऐसे कैसे बैकआउट कर सकता है कोई? वही और हम हंस रहे हैं इस टाइम पे भी, वी वर लाफिंग, नहीं नहीं गिरने ही नहीं देंगे भाई, हम बांध के रखेंगे। एंड देन इवेंचुअली इट हैपेंड अराउंड 9:30 और 10 o'clock रात के। हमने उसे, वी टाइड हर अप हर वेस्ट थ्रू द रोप, एंड देन देयर शी वाज ऐसे स्पाइडरमैन की तरह वॉल पे ऐसे रोप लेके अटकी हुई है, और हम धीरे धीरे स्लाइड कर रहे हैं, एमटेक वाले भी हेल्प कर रहे हैं, एंड देयर शी वाज फाइनली नीचे। फिर हम ऊपर से देख रहे हैं कि ये बस उस कार तक पहुंच जाए जहाँ इसके फ्रेंड्स हैं, एंड ओ माय गॉड। और उसके बाद बस विजय और मैं आए और हम खुशी से पागल कि भाई आज तो We pulled it off. we were like भाई का मजा ही आ गया है। एंड हमें इस इंसिडेंट के लिए हमें पार्टी मिली थी। I don't remember. अच्छा। I don't remember the whiskey, but her friend sent it to us. Ki since we were the helpers. Oh. Yeah. Magic. Actually, we demanded it. We demanded it basically. हक से। So adding on to that, my male friends who were in the car to pick her up, they told me later कि उनका विजन क्या था कि एक बंदी आ रही है हुडी में जिसके आसपास तारे लटकी हुई है और एकदम भागती हुई उनकी तरफ आ रही है, and they get her into the car, and वो भी बहुत प्लान करके आए थे कि वो पुराने गद्दे और पुराने कपड़े लेके आए थे, और फ्रंट सीट और बैक सीट के बीच में जो जगह आती है वहां पे उसको लटा दिया और उसके ऊपर कपड़े डाल दिए ताकि वो दिखे ना बाहर से। एंड हाँ, और मेन गेट से निकलते टाइम क्योंकि गार्ड चेक करता है कि क्या तुम क्या ले जा रहे हो, ऑब्वियसली गार्ड को ये तो नहीं लग रहा कि तुम बॉडी स्नीक आउट कर रहे हो, बट वी डन दैट एंड वी डिड दैट, एंड हाँ ये थी हमारी अमेजिंग स्टोरी। क्रेजी ब्रो, क्रेजी। काफी ऑसम। एंड पूरे कॉलेज में आई डोंट थिंक सो हम लोगों ने इतना इसको वो किया था, बिकॉज़ हमें लग रहा था भाई एक बार निकल हाँ मुझे अभी पता चला। वापस कहीं पे पहुंच गया तो हमारे मतलब कॉलेज से ही बाहर निकलना था, फिर डिग्री नहीं मिलनी थी। यही we crossed all the lines before this, तो ये अब जाके we have like we thought यार अब तो क्या ही होगा, even still we don't have our degrees now, but no, I do बीजे बोल रही थी कि कहीं बॉस की ये ना बोले कि डिग्री नहीं मिली अभी रुक जाओ। नहीं अब तो क्या ही होगा। अब तो एमबीए भी हो गया। I swear. Congrats वैसे बॉस की। Yeah, thanks. Boss ki just completed her MBA from IIM Indore, so like congrats. COVID MBA. COVID. This is our farewell gift. This is without any inauguration. Oh. This is our farewell gift, और इसके बाद हम एक प्यारा सा गाना चला देंगे to bid farewell to वॉस्की। किसकी आवाज में सुनना है वॉस्की को ये गाना? अच्छा हमारे कॉलेज के अच्छे सिंगर्स चंदोक, शिवम चंदोक। ओह ठीक है, ओके डन वो तो हो सकता है यार। वो हो सकता है आराम से। मुझको गलत ना समझना, मैं नहीं बादल आवारा, दिल की दीवारों पे मैंने नाम लिखा है तुम्हारा, हो तेरे प्यार बेकुर्बान, मेरा दिल मेरी जान, तुझे लग जाए मेरी उम्र, बाजीगर ओ बाजीगर, दिल वालों का मैं दिलबर, बाजीगर ओ बाजीगर,
मैं हूँ बड़ा जादूगर. If you have heard the first episode, you might recall him because his name was omnipresent in that conversation. So today we have Utsav sir with us. Utsav sir was again our senior, and I'm not going to explain the sir thing again, but so he was in college with us, and he was with us in the Dramatic Society. So me and Vijay, both of us were associated with the Ashwamedh, which was the Dramatic Society of our college, and we had a wonderful time there. And Utsav sir was our senior. He was just senior to us 1 year, and we had some fun times over there. तुम लोगों ने बहुत गलत करा. तुमने जो पहले एपिसोड में जो गोवा की ट्रिप थी, दी अमेज गोवा ट्रिप. तो मैं अपना बैकग्राउंड देता हूँ स्टोरी का कि मेरा क्या पर्सपेक्टिव था उधर. तो मैं फाइनल ईयर में था. मेरी इंजीनियरिंग वाज कमिंग टू एन एंड. ठीक है. और मैं चूतियों की तरह मैं अपने ईयर वालों के बजाय मैं अपने जूनियर्स के साथ चला गया हूँ ट्रिप पर. वो गलती दोबारा मैंने दोहराई अपने फाइनल ईयर में. तूने कुछ सीखा ही नहीं मेरे से. वो प्रॉब्लम तो हमेशा मेरे को तेरे से रही थी. और ये इंटेलिजेंट मैं. हाँ, ये यार विजय हमसे तेज थी, ये तो मैं मानता हूँ. हम लोग भोले थे, विजय तेज थी शुरू से हर मामले में. ठीक है. हमसे she is 4 years ahead of us, I feel. हर चीज में. हाँ, true. हमने जो जब करा इसने 4 साल पहले कर लिया. कर के खत्म कर दिया. अभी वो सन्यासी वाले मोड में जा चुकी है. ठीक है. तो मतलब तो मैं ये कहता, मैं 4th ईयर, तो इस पॉइंट से पहले ना मेरी और अनुकूल की बहुत अच्छी दोस्ती थी. बहुत अच्छे, बहुत गहरे दोस्त थे हम. और एक गोवा की एक सुबह मैं एक अच्छे से घने पेड़ के नीचे बैठा हुआ और मैं अपनी कॉलेज लाइफ रिकलेक्ट कर रहा हूँ पेड़ के नीचे बैठकर. यार 4 साल होने को आ गया, क्या करा क्या नहीं करा, कहाँ पहुंचे कहाँ नहीं पहुंचे. और एकदम से मुझे इसके चिल्लाने की आवाज आई. और जब मैंने इसकी तरफ देखा, ये अकेला नहीं आ रहा था, ये स्कूटी पर बैठ के मेरी तरफ आ रहा था. और जो मेरी फटी उस समय भाई, मतलब आप वो देख लो लाइट एट द एंड ऑफ द टनल, तुम्हें दिख जाता कि यार कुछ रोशनी सी आ रही है सामने से. मुझे वो रोशनी दिख रही थी उस समय. सही में. वो तो क्या, कहाँ बैठा हुआ था मैं अनुकूल, किस चीज के क्या बोला था तूने? चबूतरे ने मेरी जान बचाई थी. मगर उस दिन के बाद से ना मैं सहम गया. फिर मैं अनुकूल से कभी दोस्त की तरह बात ही नहीं करता. मुझे इसमें अपनी मौत दिखती थी. Oh God. एंड ऑन टॉप ऑफ दैट, ठीक है, तो ये हम लोग हमेशा ऐसे ही करते थे. पहले बैंगलोर जाते थे, बैंगलोर से ट्रेन पकड़ के गोवा जाते थे. एंड वी वर कॉलेज स्टूडेंट ऑन अ बजट. बस पकड़ के ओवरनाइट बस होती थी. बस पकड़ के गोवा पर. और वी वर ऑलवेज ऑन अ बजट. ठीक है. तो मेरा एक था, मतलब आई वॉज ऑलवेज वेरी श्योर कि मैं लोगों से ऐसे बात करूंगा कि यार कहीं पैसे कम हो जाए, कहीं पैसे बचा पाए तो बचा लें. तो इस चीज का इसने मजाक उड़ाया अपने एपिसोड में कि मैं बोलता था कि सर स्टूडेंट सर डिस्काउंट सर प्लीज सर. एंड इट वर्कड फॉर सम रीजन. ठीक है. एंड आई टेल यू व्हाई आई से दैट इट वर्कड. ठीक है. तो तुम्हें याद है जब हम जन शताब्दी में थे और टीटी आया था टिकट के लिए. हाँ. और ये पीछे से मुझे कह रहा है कि सर 5,000 का चेक है, ये चेक दे दें क्या. उस समय मेरा माथा फटा हुआ है. ठीक है. जो 4th ईयर का बंदा चिल करना है अपनी ट्रिप पे, वो 7 लॉन्डो के साथ ट्रेन छोड़ चुका है अपनी एक बार. ठीक है. 2 बार गए थे ना गोवा में. सेम ट्रेन 2 बार छोड़ने के बाद हम एक ट्रेन में बैठे हैं, टीटी हमसे पैसे मांग रहा है, हमारे पास पैसे नहीं है. हम लोग 6,000 पता नहीं कितनी महंगी तो टैक्सी करी थी. हाँ. अरे 7,000 की टैक्सी थी. और अच्छा विजय देखो, इसने एक ढंग से चीज नहीं बताई. कबीर सिंह हैपेंड लास्ट ईयर राइट, मगर वो जो हमारा ड्राइवर था ना, ही वॉज अ लिविंग कबीर सिंह.
मतलब अगर कबीर सिंह डॉक्टर के बजाय ड्राइवर होता ना तो वो बंदा होता वो. एंड वो सिगरेट नहीं पीता था, वो बीड़ी पीता था और वो बीड़ी का ड्रैग लेता था और फिर एक्सीलरेटर दबाता था. एंड आई रिमेम्बर आवर कार टचिंग 160 किलोमीटर पर आवर विद ये 8. बताया था मैंने कि वो ये करता था. वो सिगरेट नहीं, वो बीड़ी पीता था. इट्स अच्छा, देयर अ okay. डिफरेंस. और भाई पूरी गाड़ी कांपी. Good. I'm very happy someone's finally pointing him out in the wrong details of the हाँ. story. मैं पीछे बैठा था सबसे लास्ट सीट पे, ठीक है, तो मेरे को दिख नहीं रहा था. एग्जैक्टली, क्योंकि तेरे को फर्क ही नहीं पड़ रहा था कि क्या चल रहा है. Nobody cares. भाई हम यहाँ 7-6 जनों की जिम्मेवारी थी यार लोगों के ऊपर, पर यू डिडंट रियली केयर. तेरे को फर्क ही नहीं पड़ रहा है. क्या सीनियर है तू. What? I didn't care. मतलब क्या है इसका? तू अपने जोन में था, तू चिल कर रहा था. तो एक चिल तो मैं नहीं कर रहा था, मेरे को बस ये था कि मैं क्या ही करूं अब, तो I was just being quiet. हाँ. तो अच्छा that happened and coming back to जनशताब्दी में टीटी हमारा टिकट चेक करने आया and I made that face again and मैंने उनसे बोला सर स्टूडेंट है सर, पैसे नहीं बचे, बिल्कुल नहीं, कुछ नहीं बचा. हमने 6,000-8,000 की टैक्सी कर ली and that guy टीटी ने he paid from his pocket for our ticket. ये हुआ था. ये हाँ. नहीं पता था मेरे तो को. हमारा जितना टोटल अमाउंट था, हमने 500 रुपए देते, 150 रुपए उसने अपनी जेब से डाले थे और हमें 650 रुपए की टिकट दिए थे. ओह अच्छा, ये नहीं पता था मेरे को कि उसने 150 को दिए थे. नाउ दैट आई लुक बैक, हम लोग 150 रुपए नहीं दे पाए उसे. इतने भी गए गुजरे नहीं थे हम, मगर हाँ, दिस हैपेंड. Thank you, Utsav sir. With that, we come to the conclusion of our bonfire night. Thank you so much for being with us. Thank you so much for listening to all our stories with all our friends. I know these are dark times. These are a little troubling times, but we're all in this together and we'll all come out of it together. This weekend, just grab your phone and talk to that one friend with whom you share an experience like this. Or if not, just anything, any outing or anything. A friend you haven't been in touch with, or someone you haven't checked on for a very long time. Talk to them, relive all those sweet memories, all those amazing experiences you shared, so that when the morning comes, you're as grateful as ever and you're ready to rise and shine. Yeah, I had to end it on a preachier note. I cannot express enough gratitude for the amazing and talented singers who lend their voices to in each of our episodes. So thank you so much to Nupur Singh Datta, Sonali Mittal, Saksham Kalsi, Manan Rishi Aneja, who actually lent us one of his original songs, and to our very own Dhananjay Khanna, who has also edited the entire series for you. Also, the original background score is by Manan Rishi Aneja. For detailed song credits, please look at the episode description. Thank you so much for listening. When I feel cold, I'll keep you close. And if I could hold you and take you home, when at night your toes touch mine, I'll sing you to sleep. If you were mine to keep, I wish I could leave you, my love, but my heart is a mess. My days, they begin with your name, and nights end with your breath. I wish I could leave you, my love, but my heart is a mess. But days, they begin with your name, and nights end with your breath. With your breath.